So today in the chapter cell that we continue today, our topic is ribosome. Okay. So first of all, we must know that ribosome was discovered by Palade in 1955. Ribosome was discovered by Palade. Ribosome was discovered by Palade in 1955. राइबोसोम जो है पैलेट के द्वारा डिस्कवर किया गया है in 1955 and the term ribosome was given by Robert in 1958 and the term ribosome was given सर आपका कैमरा नहीं ऑन है। कैमरा ऑन नहीं है तो क्या चल रहा है यहाँ? सर नहीं दिख रहा है, ऑन है। तुम्हारा देखो प्रॉब्लम है, तुम एक बार रिकनेक्ट हो जाओ, हो जाएगा। ठीक है, मेरा तो ऑन है तभी तो सबको दिख रहा है। तुम एक बार रिकनेक्ट हो जाओ। राइबोसोम was discovered by Palade in 1955 and the term ribosome was given by Roberts when in 1958. Given by Roberts in 1958. 1958. Now they are the cell organelles, that is ribosomes are the cell organelles which are discovered by electron microscope. Electron microscope was discovered by Knoll and Ruska and through this electron microscope this cell organelle is discovered. तो लिखेंगे these means ribosome are the cell organelles. Ribosome are the cell organelles discovered with the help of electron microscope. Electron microscope. Okay, so these are the cell organelles which are discovered with the help of electron microscope. Now what is the chemical composition of ribosome? Ribosome is basically made up of nucleoprotein. Nucleoprotein means RNA plus protein. Okay, so ribosomes are mainly composed of nucleoprotein, or we can say ribonucleoprotein. Ribonucleoprotein क्यों बोले? क्योंकि इसमें that is पाया जाता है RNA, that is ribonucleic acid and protein. That is why it is called ribonucleoprotein. Are also known as protein factories. इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है. As these are means ribosomes are primarily involved in the synthesis of protein. Okay, these are primarily involved in the synthesis of protein. Okay, प्रोटीन का और एक नाम क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन, इसलिए हम इसको पॉलीपेप्टाइड्स भी बोल सकते हैं.
क्लियर? तो सबसे पहले राइबोसोम किससे डिस्कवर हुआ? डिस्कवर्ड बाय पैलेट. एंड हु कॉइन्ड द टर्म राइबोसोम? रॉबर्ट्स. ओके. नाउ राइबोसोम आर द सेल ऑर्गेनल्स which are discovered with the help of electron microscope. Okay. Third point, ribosomes are mainly composed of ribonucleoprotein. Ribonucleoprotein means RNA and protein. ठीक है. Ribosomes are also known as protein factories. Why? Because these are primarily involved in the synthesis of protein or polypeptides. ओके. नाउ थर्ड क्या है? थर्ड पॉइंट है कि राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल. राइबोसोम इज द टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल विच इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. राइबोसोम इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है. तो राइबोसोम जब एक प्रोकैरियोटिक सेल में फ्रीली पाया जाएगा साइटोप्लाज्म में, that are called monosomes. In eukaryotic cell they occur freely or they may attach to endoplasmic reticulum is another cell organelle, or attach to the nuclear membrane, or attach to the plasma membrane. Okay. Sometime they are also attached to messenger RNA. Sometime वो किसके साथ attach होता है? Messenger RNA. Why? Because messenger RNA contain the information that which type of protein is to be synthesized by the ribosome. राइबोसोम को कौन सा प्रोटीन बनाना है, ये मैसेज कहाँ पे है? मैसेंजर आरएनए के पास. और जब मैसेंजर आरएनए में एक से ज्यादा राइबोसोम, दैट इज 4 to 6 राइबोसोम एक साथ एक क्लस्टर बना के एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर एक सिंगल एमआरएनए के साथ अटैच होता है टू प्रोड्यूस अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन बट इन अ लार्ज क्वांटिटी. टू प्रोड्यूस single type of protein but in a large quantity, that is called polysome or polyribosome. ठीक है. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे राइबोसोम्स are found in all types of protein, all types of cells. ठीक है. अभी हमने आपको जस्ट बताया कि राइबोसोम इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल विच इज फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. वी ऑल नो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोकैरियोटिक सेल? दोज सेल विच डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस and also it lacks cell organelles, but or we can say except ribosome. Okay. तो सबसे पहले लिखेंगे इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स these are found in the cytoplasm. These are found in the cytoplasm in free forms. In prokaryote, these are found in the cytoplasm in free forms. Okay. Free forms means called and are called freely पाया जाता है and are called what they are called. This type of ribosome which are found freely in the cytoplasm in prokaryote are called monosomes. Okay. ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोले हम? राइबोसोम जब प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. अब हम लोग आओ यूकैरियोटिक सेल. ठीक है. यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? तो इन यूकैरियोट्स में क्या होगा? यूकैरियोट्स राइबोसोम्स आर फाउंड associated. Ribosomes are found associated with, just बताए थे कि ribosomes are found associated with membrane of ribosomes are found associated with
मेम्ब्रेन्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस में राइबोसोम पाया जाता है, दैट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, थ्रू राइबोफोरिन, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोफोरिन, राइबोफोरिन 1 and राइबोफोरिन 2, and this राइबोफोरिन helps in the attachment of ribosome in the outer membrane of endoplasmic reticulum। और इसी की मदद से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली रफ क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन एंड एंजाइम्स। क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन एंड एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मैनी राइबोसोम्स में be associated, okay, with mRNA, that is messenger RNA, ठीक है। अभी हम जस्ट बताएं, to form a single type of protein but in a large quantity, to form what? To form polyribosome, to form polyribosome or polysome, ठीक है। and this association of more than one ribosome with the messenger RNA is called polyribosome or polysome। तो यहां तक समझ आ गया सभी को? सर बोलो। लास्ट में थ्रू क्या लिखा हुआ है? लास्ट में थ्रू राइबोफोरिन, through riboforin, RIBOPHORIN, through riboforin। These riboforins are special type of chemicals which helps in the attachment of ribosome in the outer membrane of the endoplasmic reticulum, okay। एकदम ठीक है दी, ठीक से देखो, बड़ा किया तो बोल रहा ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया। नेक्स्ट है कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है और राइबोसोम का क्या नेचर होता है, ये सब हम बताएंगे, ठीक है। तो ये मिटा रहे हैं, रब कर रहे हैं, देखो ठीक। नेक्स्ट, राइबोसोम आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल इन द सेल। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इन द सेल। राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, सेल में। उसके बाद द एवरेज साइज ऑफ राइबोसोम, जो राइबोसोम का एवरेज साइज है वो रेंज करेगा फ्रॉम 130 टू और 150 टू 230 एंगस्ट्रॉम, फ्रॉम 150 to 230 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नाउ अनलाइक अदर सेल ऑर्गेनल्स, अनलाइक अदर सेल ऑर्गेनल्स, दूसरे सेल्स में इसमें अंतर क्या है? इट इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, यानी ये नेकेड बॉडी है, नेकेड सेल ऑर्गेनल है। अनलाइक अदर सेल ऑर्गेनल्स, these are not surrounded, unlike other cell organelles, these are not surrounded
बाय मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? दे आर इन एडिशन टू साइटोप्लाज्म ऑल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये जो राइबोसोम सेल ऑर्गेनल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। इसीलिए दिस राइबोसोम आर कॉल्ड ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। ये खुद एक ऑर्गेनल है और ये दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर या बाहर भी पाया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या कहा गया? ऑर्गेनल विद इन अ ऑर्गेनल। ओके, तो लिखेंगे दे या दीज आर इन addition to, these are in addition to cytoplasm, these are in addition to cytoplasm also occur within what? Mitochondria, दूसरा क्या बोले? क्लोरोप्लास्ट, और थर्ड क्या बोले? न्यूक्लियाई। सो राइबोसोम्स आर called organelles within a organelles. Ribosomes are called organelles within a organelles. ठीक है, ऑर्गेन के अंदर, ऑर्गेनल्स के अंदर ऑर्गेन पाया जा रहा है, इसलिए ऑर्गेनल्स विदिन अ ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप है और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S टाइप है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस S? This S is called Cederberg constant. Now what this Cederberg constant? This Cederberg constant stands for sedimentation coefficient. ठीक है, Cederberg constant किसके लिए स्टैंड है? It stands for sedimentation coefficient. Now the question is, फिर तुम लोग से ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर what is sedimentation coefficient? Sedimentation coefficient is the measure of density and the size of the ribosome. Sedimentation coefficient क्या है? It is the measurement of the density and size of the organ, size of the ribosome. ठीक है, तो लिखेंगे the prokaryotic ribosome are 70S type, while the eukaryotic ribosome are 80S type, ठीक है, are 70S type while the eukaryotic ribosome are 80S type. अब these S stands for Cederberg constant. S stands for Cederberg constant, तो इसका नाम है। ठीक है, दिस S stands for sedimentation coefficient. क्या बोले थे? sedimentation coefficient. अब यहाँ पे सवाल है कि ये sedimentation coefficient का मतलब क्या है? हम बोल तो दिए कि it is sedimentation coefficient. It is the measurement या measure of density and size of the ribosome. ये किसका मेजरमेंट है? डेंसिटी एंड साइज ऑफ द राइबोसोम। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या है? 70S टाइप, और यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या है? 80S टाइप। व्हाट इज दिस स्टेट? S is
Cederberg constant, which is basically stands for sedimentation coefficient. Now the word sedimentation coefficient means it refers to the measurement of or measure of density and size. What is it? It stands for measurement of density and size. Okay, यहां तक समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम. समझ गए? टाइप्स ऑफ राइबोसोम तो हम लोग जान गए. अब हम जानेंगे ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है. मींस 70s राइबोसोम के बीच डिफरेंस क्या है और 80s राइबोसोम के बीच डिफरेंस क्या है. ठीक है, देखो डिफरेंस बिटवीन between 70s ribosome and 80s राइबोसोम. ठीक है, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम. फर्स्ट 70s राइबोसोम कहां पे पाया जाता है? These are basically found in prokaryotic cell. Prokaryote means बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब में पाया जाता है. मीन्स मोनेरा में पाया जाता है. तो लिखेंगे these are found in prokaryotic organisms. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब हो गया. 80s राइबोसोम किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल. These are found in यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अगर मोनेरा किंगडम को छोड़ दो तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल सभी में क्या है? 80s राइबोसोम है. ब्रैकेट में लिख दो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. इसमें क्या पाया जाता है? 80s राइबोसोम. नेक्स्ट लार्ज सब यूनिट क्या है? लार्ज सब यूनिट है इसका 50s और इसका लार्ज सब यूनिट क्या है? लार्ज सब यूनिट है 60s. सेकेंड, थर्ड स्मॉलर सब यूनिट. स्मॉलर सब यूनिट क्या है? स्मॉलर सब यूनिट है इसका 30s और इसका स्मॉलर सब यूनिट क्या होगा? 40s. 40s. अब it is comparatively smaller. comparatively smaller. और ये क्या होगा? it is comparatively larger. ठीक है, नेक्स्ट this a 70s ribosome is synthesized in cytoplasm. It is synthesized in the cytoplasm. ये जो 70s राइबोसोम है ये कहां पे सिंथेसाइज होता है? साइटोप्लाज्म में. और जो 80s राइबोसोम है ये कहां पे सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियस में. सिंथेसाइज्ड inside
the nucleus. Synthesize inside the nucleus. Next, 6th, इस 70th राइबोसोम में RNA is to प्रोटीन का जो रेशियो है वो कितना है, 60:40, ठीक है। और 80th राइबोसोम में जो RNA is to प्रोटीन का रेशियो है यह है 50:50। क्या है, 50:50, ठीक है। तो ये हो गया RNA और प्रोटीन का रेशियो 50:50, क्लियर। तो देखो ये 70th और 80th राइबोसोम का डिफरेंस है। फर्स्ट फाउंड बेसिकली इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। राइबोसोम्स 80th राइबोसोम आर बेसिकली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। सेकंड, लार्जर सब यूनिट ऑफ 70th राइबोसोम 50s, larger subunit of 80th ribosome 60s, smaller subunit of 70th ribosome 30s, smaller subunit of 80th ribosome 40s. 70th ribosome comparatively smaller, 80th ribosome comparatively larger. Next, this 70th ribosome is synthesized in the cytoplasm, whereas 80th ribosome is synthesized inside the nucleus. Finally, RNA and protein is in the ratio of 60:40, whereas RNA and protein in 80th ribosome is in the ratio of 50:50, मतलब दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में। किसमें, 80th राइबोसोम में। यहां तक समझ आ गया? किसी को तो डाउट है तो पूछो, ठीक है। अब ये राइबोसोम, किसी को दिक्कत नहीं है ना? अंजलि, इरशाद, किसी को? ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। टॉपिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट वॉज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय पॉटर, P-O-R-T-E-R, Potter and Thomson, but in the same year, that is 1945. And the term endoplasmic reticulum was coined by Potter in 1953. 1945 में इसका डिस्कवरी हो गया, बट ये जो नाम है endoplasmic reticulum, that was given by Potter, but in the year 1953. लिखेंगे, it was discovered by whom? Discovered independently, यानी स्वतंत्र रूप से, independently by Potter, P-O-R-T-E-R, Potter 1945, and ठीक है, दूसरा थॉमसन, ईयर सेम है लेकिन अलग अलग फाइंड किया था। थॉमसन, ये भी 1945, ठीक है। नाउ द नेम इंडोप्लाज्मिक, ओके, रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम was given by whom? Was given by Potter, but in 1953. Now, what is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum is a three-dimensional, complicated and interconnected system of membrane-lined channels that passes or run throughout the cytoplasm
ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम endoplasmic reticulum is a three-dimensional complicated and interconnected system of membrane, complicated and interconnected system of membrane lined channels, membrane lined channels, okay, membrane lined channels that run throughout the cytoplasm, now endoplasmic रेटिकुलम है ना। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है कि ये एक थ्री डायमेंशनल कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। किसका? मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स का, जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फैला हुआ, इसलिए रन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इट डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस, it divides the intracellular space मतलब जगह, जो इंट्रासेलुलर स्पेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, into two compartment, ठीक है, into two compartment। फर्स्ट लुमिनल ठीक है, और सेकेंड एक्स्ट्रा लुमिनल ओके। फर्स्ट इज लुमिनल एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा लुमिनल। नाउ दिस लुमिनल इज व्हाट? लुमिनल मीन्स inside the endoplasmic reticulum, ER, inside the endoplasmic reticulum, and extraluminal means outside the endoplasmic reticulum। extraluminal means, ठीक है, outside the endoplasmic reticulum, या बोल सकते हो रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंडर में कवर नहीं हो रहा है उसको बोले एक्स्ट्रालुमिनल, और साइटोप्लाज्म का जो पार्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जा रहा है वो हो गया लुमिनल। ठीक है, अब इसके बाद द एक्सटेंट यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फैलाव है वो साइटोप्लाज्म के कितने स्पेस को अपने अंदर में इंक्लूड कर रहा है, इसको हम लुमिनल बोल रहे हैं, वो सेल टू सेल वेरी करता है। तो द एक्सटेंट ऑफ endoplasmic reticulum varies from cell to cell. The extent of endoplasmic reticulum varies from cell to cell, which increases the इंटरनल, ठीक है, सरफेस। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो एक्सटेंट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल टू सेल वेरी करता है और वो इंक्रीज कर देता है इंटरनल सरफेस को कितने टाइम? 30 to 40 टाइम्स, 30 to
40 times as compared to external surface, मतलब वो लुमिनल एरिया को 30 to 40 टाइम इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस। ओके, ये किसका नेचर है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो इंक्रीज करता है इंटरनल सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये एक्सटेंसिव से लेके रिड्यूस तक आ जाता है। जो बहुत ही ज्यादा, द सेल्स विच आर मोस्ट एक्टिव, द ऑर्गन्स विच आर मोस्ट एक्टिव like our pancreas and liver, in this the endoplasmic reticulum is most extensive, but in spermatocytes, mature RBC, this endoplasmic reticulum is totally absent because these are inactive cells. तो लिखेंगे endoplasmic reticulum is quite extensive in metabolically, ठीक है, in metabolically active cell, जैसे कि सेल्स ऑफ, अभी जस्ट बोले पैनक्रियास, सेल्स ऑफ pancreas and liver, cells of pancreas and liver. Next, a simple in, ये सिंपल होता है किसमें? स्टोरेज सेल में, ये जिसमें स्टोरेज सेल में, जैसे कि हमारे बॉडी में एडिपोज सेल्स है, एडिपोज टिश्यू क्या स्टोर करता है? फैट्स, तो लिखेंगे स्टोरेज सेल्स। एग्जाम्पल, इन the form of tubules, किसमें? adipose cells, किसमें? adipose cells। ठीक है, और ये टोटली एब्सेंट होता है किसमें? अभी जस्ट बताएं, स्पर्मेटोसाइट में, एग में, मैच्योर आरबीसी में, एंड टोटली एब्सेंट in eggs, mature erythrocytes, embryonic cells, प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, और इसमें जो है, जो इसमें मेटाबॉलिकली जो लेस एक्टिव है, वैसे सेल में तो ये 100% एब्सेंट है। जैसे कि एक सेल मैच्योर आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब आरबीसी, एम्ब्रायनिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ किसमें है? जो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव सेल्स है, जैसे कि हमारे बॉडी में पैनक्रियास और लीवर। ओके, तो यहां तक समझ आ गया? अंजलि, रिया, मनीषा, अभिति, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स को हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पढ़ाएंगे, ताकि तुम लोग को दोनों याद हो जाए, टाइप्स भी याद हो जाए और डिफरेंस भी याद हो जाए। दो ही है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now, types of endoplasmic reticulum, टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो टाइप्स में क्या क्या आएगा ये समझ लो। सबसे पहले, डिपेंडिंग अपॉन
the nature, depending upon the nature of the endoplasmic reticulum, it is of two types. ठीक है, it is of two types. It is of two types. First, rough endoplasmic reticulum. दूसरा, स्मूथ endoplasmic रेटिकुलम. रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस आधार पर है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन में राइबोसोम होगा आउटर मेम्ब्रेन में तो ये रफ है, और मेम्ब्रेन में अगर राइबोसोम नहीं होगा तो ये क्या है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. नाउ these two types of endoplasmic reticulum may be continuous. मे बी ये जो दो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे मे बी कंटिन्यूअस विथ what? With each other. They may be continuous with each other. Plasma membrane, okay, and nuclear membrane, and nuclear membrane. ठीक है. नेक्स्ट, ये डेवलप कहां से होता है? दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मे बी डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो पहले से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे डेवलप करेगा, क्योंकि याद करो रुडोल्फ विर्चॉव ने क्या कहा था? न्यू सेल एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. दूसरा, इट डेवलप्स फ्रॉम प्लाज्मा लेमा. प्लाज्मा लेमा JQ प्लाव के द्वारा टर्म दिया गया है, विच इज अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा लेमा का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. एंड द थर्ड इज न्यूक्लियर इन्वेलप. तो लिखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में develops from pre-existing endoplasmic reticulum, plasma lemma और न्यूक्लियर इन्वेलप. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है में डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप करेगा? प्री एग्जिस्टिंग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा लेमा विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप. ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे, ये तो हम लोग जान गए कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है चाहे वो रफ हो या स्मूथ हो, इसका डिफ्रेंशिएशन जो हुआ है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द types of membrane of the endoplasmic reticulum. Second, these two type of endoplasmic reticulum, it may be in association with each other or may be in association with the plasma membrane of the eukaryotic cell or the nuclear membrane of the eukaryotic cell. Sir, third point क्या है? How they are formed? They may develop from pre-existing endoplasmic reticulum, plasma lemma और nuclear envelope. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे what are the differences between these two types of endoplasmic reticulum. ठीक है, नेक्स्ट
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां पे होगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले व्हाट इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो क्या होगा? इट डज नॉट हैव राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं है। कहां पे नहीं है? ओवर द सरफेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, इसमें राइबोसोम नहीं है ओवर द सरफेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। रफ में क्या होगा? इट हैव राइबोसोम ओवर द सरफेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, आउटर इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है, उसके ऊपर में क्या पाया जाता है? राइबोसोम। सो इट इज कॉल्ड रफ। और इसके आउटर मेम्ब्रेन में क्योंकि राइबोसोम नहीं पाया जाता है, सो इट इज कॉल्ड स्मूथ। सेकेंड, इट इज मेनली formed of vesicles. Vesicles are spherical or cylindrical like structure, and tubules. Tubules are tube like structure which may be branched or unbranched. और यहां पे क्या होगा? जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है, एंड अ फ्यू ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से बना हुआ है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल से बना हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज engaged, it is engaged in the synthesis of, क्या क्या सिंथेसाइज करता है? in the synthesis of glycogen, that is a carbohydrate, lipid, we all know that it is a fat, and steroids, common example cholesterol. okay, और रफ में तो राइबोसोम है, so it is involved in the synthesis of protein and enzyme. It is involved in the synthesis of protein and enzymes. Fourth, what is the function of smooth endoplasmic reticulum? Along with forming glycogen, lipid and steroid, it give rise to spherosome. It give rise to spherosome. और जो तुम्हारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, it give rise to another cell organelle that is called lysosome. एक तरफ स्फेरोसोम, दूसरी तरफ लाइसोसोम. It helps in the formation of what? Formation of lysosome through the agency of Golgi apparatus. Through the agency of Golgi apparatus. ठीक है. नेक्स्ट,
ये जो तुम्हारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके मेम्ब्रेन में पोर्स नहीं होता है, जिसके कारण जो भी मटेरियल ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है, चाहे वो ग्लाइकोजन हो, लिपिड हो या स्टेरॉयड हो, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल के थ्रू नहीं जा पाता है। जबकि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें के मेम्ब्रेन में नैरो पोर्स होता है जस्ट बिलो द राइबोसोम। तो राइबोसोम जो भी प्रोटीन या एंजाइम बनाता है, दैट पासेस थ्रू दिस पोर इनटू द चैनल्स ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो लिखेंगे पोर्स आर एब्सेंट। पोर्स किसमें एब्सेंट है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर मेम्ब्रेन में। उससे क्या और इनर मेम्ब्रेन में उससे क्या होगा? सो मटेरियल्स synthesized by smooth endoplasmic reticulum do not pass into, so material synthesized by smooth endoplasmic reticulum do not pass into its channel। ठीक है, ये इसके चैनल में पास नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें पोर क्या है? एब्सेंट है। और इसमें क्या होगा? इसमें होगा इट पोजेस, अभी जस्ट बताएं, नैरो पोर्स। इट पोजेस नैरो पोर्स वेयर बिलो इट्स राइबोसोम। ये पोजेस करता है नैरो पोर्स बिलो द राइबोसोम for the passage of synthesized polypeptide। कहां पे? synthesized polypeptide into endoplasmic reticulum channels। ठीक है, ये काम कौन करता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट में डेवलप फ्रॉम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डेवलप फ्रॉम द न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो देखो सिक्स्थ, इट में डेवलप्स फ्रॉम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किससे डेवलप होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और रफ किससे होगा? इट में डेवलप्स फ्रॉम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ सेवेंथ, Riboforine are absent. This riboforine helps in the attachment of ribosome to the outer membrane of rough endoplasmic reticulum. Okay? और यहाँ पे राइबोफोरिन नहीं है, इसलिए इसका आउटर मेम्ब्रेन में राइबोसोम नहीं है और इसलिए इसको स्मूथ कहा गया। यहाँ पे लिखेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम contain two types of what? Riboforine, that is 1 and 2। ठीक है, 1 and 2, that is 1 and 2
फॉर अटैचमेंट टू राइबोसोम, फॉर अटैचमेंट टू राइबोसोम। नेक्स्ट, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनता है? वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो क्या होगा? वेसिकल्स, वेसिकल्स फॉर द सिस फेज। देखो किसी भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस तरह का होता है, तो नीचे वाला फेज हो गया सिस, ऊपर वाला फेज हो गया ट्रांस। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सिस फेज है उसके लिए जो वेसिकल्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेसिकल्स फॉर द सिस फेज ऑफ गोल्जी apparatus are provided by, Golgi apparatus are provided by smooth endoplasmic reticulum, ठीक है। और इसमें इट, ठीक है, क्या होगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम provides biochemicals, provide biochemicals for Golgi apparatus। वहीं पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये Golgi apparatus के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है? बायोकेमिकल्स। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, सर एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है इसका, स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो टोटल अगर देखो तो ये तीन चीज से बना हुआ है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्न। तो हमें ये जानना है कि ये तीनों क्या है और कैसे अरेंज होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर of endoplasmic रेटिकुलम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नाउ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स, कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स और स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड चैनल और स्पेस। Second, the channels or space, the channel or space contain a fluid. The channels or space contain a fluid called इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स है और इस चैनल के अंदर क्या पाया जाता है? एक फ्लूइड जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्या नाम है? इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, हो गया। विच इज क्वाइट डिफरेंट, ये बहुत ही अलग है किससे? विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम
साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ये बहुत ही अलग है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है। प्रेजेंट आउटसाइड द reticulum, which is quite different from cytoplasmic matrix present outside the reticulum. Now, the membrane of the endoplasmic reticulum, the membrane of the endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum are 50 to 60 angstrom thick, 50 to 60 angstrom thick। जो मेम्ब्रेन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो 50 to 60 angstrom thick है। नाउ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम can exist in 3 forms। ये 3 फॉर्म में पाया जाता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। 3 फॉर्म्स। फर्स्ट क्या होगा? सिस्टर्नी। फर्स्ट क्या होगा? सिस्टर्नी। अब ये सिस्टर्नी क्या है, ये क्वेश्चन है। तो दीज आर फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैक, these are flat interconnected sac यानी थैलीनुमा, sac like parts of the endoplasmic रेटिकुलम। ये फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैक लाइक पार्ट है किसका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। विच आर 40 to 50 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ये क्या है? 40 to 50 नैनोमीटर डायमीटर में। नेक्स्ट क्या होगा? ये बंडल में पाया जाता है जो पैरेलली अरेंज्ड होता है। These are found in bundles। ये बंडल में पाया जाता है where they lie parallel to one another, जो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होता है। और लास्ट दे ऑकर, यानी जो सिस्टर्नी है दे ऑकर इन द सेल्स, दे ऑकर इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन, क्या बोल रही है? देखो, these are found in the bundles where they lie parallel to one another, where they lie, नहीं दिखाई दे रहा है, where they lie parallel to each other। next they occur in the cells actively involved in synthetic activity। सिंथेटिक एक्टिविटी में जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, कैसा होता है? देखो इस तरह से, ठीक है। ये हो गया सिस्टर्नी जो बंडल में है और पैरेलली अरेंज है, और इसी के ऊपर राइबोसोम अरेंज होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टर्नी।
सिस्टर्नी के बाद क्या है? 3 है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स या वैक्यूल, और तीसरा टिब्यूल्स। हम लोग सिस्टर्नी के बारे में जान गए, अब जानेंगे वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, बोलो। सर और कितना है क्लास चलेगा? बस 2 और, छोटा छोटा है। ठीक है, सेकेंड है वेसिकल्स। वेसिकल्स में क्या है? अभी तुम लोग को जस्ट बताए थे, दीज आर ओवल और राउंडेड सैक। ये ओवल या राउंडेड सैक, सैक मतलब थैली, थैली किस आकार का है? आइदर ओवल और राउंडेड। नेक्स्ट क्या होगा? ऑफ 25 to 500 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, 25 to 500 नैनोमीटर इन डायमीटर। नाउ these appear as small vacuoles। ये कैसे appear करता है? ये appear करता है as a small vacuole। ठीक है, नेक्स्ट ये जो तुम्हारा वैक्यूल्स है, ठीक है, इट रिमेन आइसोलेटेड इन द साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें अकेले रहता है, रिमेन आइसोलेटेड इन द साइटोप्लाज्म। और इस वेसिकल्स को माइक्रोजोम भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाएगा इसको? माइक्रोजोम। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लो, या तो ये तुम्हारा ओवल होगा या तो राउंडेड होगा। ठीक है, और इस वेसिकल्स के ऊपर भी राइबोसोम पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड, जो कि ओवल या राउंडेड होगा, 25 to 500 नैनोमीटर ही डायमीटर होगा। थर्ड, दे अपीयर एज अ स्मॉल वैक्यूल्स। फोर्थ, they remain isolated in the cytoplasm, अकेले रहता है। and finally these vesicles are also known as microsome। तो दूसरा नाम वेसिकल्स का क्या हो गया? माइक्रोसोम। ठीक है, और लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो है टिब्यूल्स, TUBULES। टिब्यूल्स जो है ये तुम्हारा ब्रांच भी हो सकता है या अनब्रांच भी हो सकता है। लास्ट थर्ड, टिब्यूल्स। ठीक है, टिब्यूल्स। टिब्यूल्स क्या होगा? These are tube-like extensions which may be connected. These are tube-like extensions which may be connected with सिस्टर्नी। ये ट्यूब लाइक एक्सटेंशन है, ये या तो सिस्टर्नी के साथ एसोसिएटेड होता है या टिब्यूल्स के साथ, सॉरी वेसिकल्स के साथ। ठीक है, सिस्टर्नी और वेसिकल्स। वेसिकल के साथ एसोसिएट हुआ तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, सिस्टर्नी के साथ एसोसिएटेड हुआ तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, विद सिस्टर्नी और vesicles. Now to form a rectangular system, now next it can be regular or irregular, branched or unbranched with a diameter of, कितना डायमीटर होगा? 50 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये ट्यूब लाइक एक्सटेंशन है जो कि तुम्हारा या तो इस तरह से होगा, ठीक है, बाइफर्केशन होगा, या तो ये तुम्हारा सिंगल ट्यूब लाइक होगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारा इस तरह से राइबोसोम पाया जाएगा।
आप जान लो फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्या है, बस ये टॉपिक खत्म। क्योंकि कोई भी सेल ऑर्गेनल है उसका कुछ तो इंपॉर्टेंस है, तभी वो है सेल में। फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर के बाद लिख दो फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला, इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस, इट प्रोवाइड्स a large surface inside the cell for various physiological एक्टिविटीज, ठीक है। सेकेंड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कीप्स द वेरियस organelles, endoplasmic reticulum keeps the various organelles in their position। ये सभी सेल ऑर्गेनल्स को अपने पोजीशन में एज इट इज रखता है, ठीक है। पहला हो गया लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है इनसाइड द सेल, दैट इज लुमिनल स्पेस फॉर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। सेकेंड, इट कीप्स द वेरियस ऑर्गेनल्स इन देयर पोजीशन। थर्ड, इट एक्ट्स as a quick means of intercellular transport, intercellular transport, ठीक है। फोर्थ क्या है, इट प्रोवाइड मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है, मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है, किसको, न्यूक्लियर इन्वेलप को। इट प्रोवाइड मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इन्वेलप, कब, आफ्टर टेलोफेज स्टेज, आफ्टर टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज स्टेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मे बी इट माइटोसिस और मियोसिस। फिफ्थ क्या है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट गिव राइज टू वैक्यूल्स, इट गिव राइज टू वैक्यूल्स, और सेंट्रल वैक्यूल किसी भी प्लांट सेल के सेंट्रल स्पेस को ऑक्युपाई करता है। नाउ लास्ट, कंप्लेक्सिंग ऑफ लिपिड एंड protein, complexing of lipid and protein to form lipoprotein occurs in endoplasmic reticulum। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है लाइपोप्रोटीन बनाने के लिए, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। And we all know this lipoprotein is the main component of plasma membrane of a cell, ठीक है। तो ये जो है, these are the 6 important functions of endoplasmic reticulum। यहां तक सबको समझ आ गया? सर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे रखता है सब ऑर्गेनल्स को अपने पोजीशन पे? देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि साइटोप्लाज्मिक स्पेस को दो पार्ट में बांट दिया। जिसको वो घेर के रखा वो हो गया लुमिनल स्पेस, और जिसको वो घेर नहीं पाया वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस। तो वो जिस स्पेस को घेर के रखा, जो भी अदर ऑर्गेनल्स है वो तो उसके बाहर ही होगा ना, कि उसके अंदर होगा, बाहर होगा। तो वो साइटोप्लाज्मिक स्पेस को दो भाग में बांट दिया, एक लुमिनल और एक एक्स्ट्रा लुमिनल। इस तरह से
वो एक लिमिटेड स्पेस बना दिया साइटोप्लाज्म में, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेन को अपने अपने पोजीशन में ऑर्गेनल्स को रहना है। समझ गए? यस सर। ठीक है, और बोलो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। अंजलि, तुबा, और भी कोई, रेनू, कोई भी है जो भी ऑनलाइन हो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इफ इट इज पॉसिबल वी ऑल्सो लर्न प्लास्टिड, व्हाट इज प्लास्टिड, व्हाट आर द टाइप ऑफ plastids, that all. Okay, that's all for today. Thank you.